previous class dealt with the trading account. Start करना है? हाँ. We dealt with the trading account and we saw what is a trading account, what type of expenses are written in it, how do we find out the cost of goods sold, ठीक है, and of course finally the gross profit or gross loss. So the difference between purchases and sales is gross profit or gross loss, and this gross profit or gross loss is not the real profit or loss of the business. All the expenses that we record in the trading account are direct expenses, directly related with the purchases. But in running this, doing this buying and selling business or trading, there are many other expenses also that are incurred by an enterprise, which are not directly related with the buying and selling transactions. All such expenditures which are not related directly with buying and selling are indirect expenses. Okay? We record the indirect expenses in the account called profit and loss account. Broadly, 3 टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट is the office and administration expenses. So office rent, simply rent, insurance, I hope you're getting it, all stationery etc. All these are the examples of office and administrative expenses. Okay, second are selling and distribution expenses like advertisement, commission paid to salesmen, what you call warehouse rent etc. These are the selling and carriage outward, carriage out inward. 2 carriage आएंगे, एक inward एक outward. Inward is related with the purchases, but outward is related with the sales, therefore it is a selling expense and therefore recorded in the profit and loss account. Okay, and third broad category of expense, indirect expenses, is the financial losses or expenses like bad debts. I hope you recollect bad debts, the amount which is irrecoverable from debtors is called as bad debts. Depreciation, loss by fire, इस प्रकार के सारे expenses कहाँ आएंगे? Profit and loss account में. Similarly, indirect incomes like rent, commission, interest etc. So all direct expenses and direct income are in the trading account. All indirect expenses and incomes are in the profit and loss account. And finally, when we find the balance of the either of trading account or profit and loss account, the credit balance is the profit and the debit balance is the loss. ठीक है ना? क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि सिंपल रूल है, ये कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं जहां पर भी आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नॉमिनल अकाउंट्स हैं. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. करेक्ट? सो इफ देयर इज अ क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस कब निकलेगा? व्हेन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड. द डिफरेंस इज द क्रेडिट बैलेंस. और सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो इनकम साइड का टोटल एक्सपेंसेस साइड के टोटल से जब ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगी, एंड वाइस वर्सा. आई होप दैट्स क्लियर. सो सेकेंड अकाउंट, इफ यू सी दिस फॉर्मेट जो आपको दिया है तो आपको वहां दिखेगा डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज,
salaries and wages, rent and rates, insurance, electricity, lighting, telephone, postage, printing and stationery. अगर आप जितने भी मैंने अभी examples पढ़े ये expenses पढ़े आप देखिए they are all related with ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे आर, मैंने आपको 3 ब्रॉड कैटेगरी बताई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. सेकेंड कैटेगरी इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सो लेट अस सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. यहाँ पर पूरा यानी एक स्लॉट नहीं बनाया है 3 एक्सपेंसेस का, सब मिक्स्ड है. हम भी मिक्स्ड ही लिखने वाले हैं. जो आया ट्रायल बैलेंस में उसके हिसाब से पोस्टिंग करते जाएंगे पहले कुछ क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद we'll try to have office and administration expenses first while solving the question, then selling and distribution and the remaining one after that. Okay, चलिए. Repairs, renewals, maintenance, interest on loan, sundry or miscellaneous expenses, conveyance, loss by fire, loss by theft, loss by accident, goods distributed as free sample is a part of selling expense. Commission allowed given to the salesman is a selling expense. Okay, discount given to the customers is again a selling expense. Allowances, advertisement, carriage outward, sales charges, bad debts, export duty, tax, all these are the what you call indirect expenses. अब एक expense के ऊपर आपको ध्यान देना है. यहाँ पे आपके बुक में अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो टैक्सेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है. अभी कहाँ लिखना, तो ट्रेडिशनली जो है यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, मगर ट्रेडिशनली अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हैं, ट्रायल बैलेंस में दोनों एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी और ट्रेड एक्सपेंसेस भी. ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में और जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आई होप यू गॉट इट. सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रेड एक्सपेंसेस का बैलेंस दिया है तो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यानी जब भी क्वेश्चन में देयर इज अ बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस शोज the balance of trade expenses, you will have to, for before posting you will have to verify whether general expenses are also given or not. Okay, if given, trade expenses will trading account direct expense treat करेंगे उसको. ठीक है, और general expenses को profit and loss account में. If only trade expenses are given in the balance of trade expenses are given in the trial balance, general expenses, sundry expenses कुछ नहीं दिया है, सिर्फ trade expenses दिया है, तो then that will have to be treated as an indirect expense and will be written in the profit and loss account. I hope that's clear. Hello. Okay, bank charges, solicitors fees, that is legal fees, secondary packaging charges, etc., etc. And on the income side also commission, discount, interest, dividend, rent, miscellaneous or sundry income, etc. Now remember, so I hope you can recall that commission, rent, interest, discount, in the trial balance these may have both debit balance and credit balance, or only debit balance or only credit balance. ठीक है ना. तो ट्रायल बैलेंस में भी जो डेबिट बैलेंसेस हैं दे आर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. जो ट्रायल बैलेंस लिस्ट आई होप यू रिकलेक्ट सर ने बताया होगा, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो सब एसेट्स की ज्यादातर वैल्यूज हैं और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हैं. उचला लवकर. ओके, तो डेबिट बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में वो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं. तो मैंने जैसे कहा कमीशन में हैव बोथ बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, तो
debit balance is an expense, therefore on the debit side of P&L account. Credit balance is an income, therefore on the credit side. So don't get confused. There will be certain items of the profit and loss account which may have both the balances. Is that clear? Debit balance is an expense, we all know. जब आप लेजर्स को बैलेंस करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस. तो जो डेबिट बैलेंस दिया है वो एक्सपेंडिचर है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा. ठीक है. और क्या बोलेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो कमीशन डेबिट साइड में भी आएगा और क्रेडिट साइड में भी आएगा. रेंट डेबिट साइड में भी आएगा, आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है. इंटरेस्ट डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड, डिपेंडिंग वेदर द बैलेंस गिवन इज अ डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस. इज दैट ओके? चलिए. देन कम्स द बैलेंस शीट विच इज नॉट an account, it is a statement showing the various assets and liabilities on a particular date. अब फर्क क्या है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. For a given period of time. So when you write the title of the account, when you write the heading of the account, you write it as in the books of so trading account for the year ending on 31st March 2020 etc. इस तरह से लिखते for the year ending on. So you are stating that this account has been prepared for 1 year ending on 31st March. Obviously it begins on 1st April. I hope that's clear. ठीक है. वो those accounts are prepared for a given period of time, but the balance sheet is prepared on a particular date. Therefore when you write balance sheet as on यानी as on 31st March, so all the values that you show of assets and liabilities are on a particular date. तो दोनों में फर्क क्या है? Accounts are prepared for a given period of time and balance sheet is prepared as on one particular date. Okay, showing the various assets and liabilities. Assets, you all know, are the properties owned by the enterprise. Okay, let's see couple of examples. Goodwill, land and building. Goodwill, what is goodwill? Monetary value of the good reputation of the business is called as goodwill. ठीक है ना? बिजनेस की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल बोलते हैं. and it is nothing but an asset. ये गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है हम ये डिटेल में देखने वाले हैं इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स, स्पेशली इन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, और इन ऑल द 3 केसेस. इज दैट ओके? देन लैंड एंड बिल्डिंग एंड depreciation. Depreciation, I hope you can recollect. It's a reduction in the book value of the assets. Since the book value of the assets are being reduced by a particular amount, the amount of depreciation is treated as a business loss. It is treated as a business loss. Okay? And therefore whatever depreciation is written off, आपने 11th standard में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है? सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स हम वो सारा प्रोसेस तो नहीं फॉलो करेंगे, मगर बैलेंस शीट में जो एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे. ठीक है? और जो माइनस करेंगे जितना अमाउंट, we will directly write it on the debit side of the profit and loss account. मैं इनकी लेजरिंग भी कर करके साथ में बता सकता हूं, कहीं कहीं बता भी दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा. जो एक की ट्रीटमेंट है वही दूसरे की भी ट्रीटमेंट होगी, यानी एक एक्सपेंडिचर या इनकम की. इज दैट क्लियर? एक्चुअली में व्हेन वी प्रिपेयर दिस फाइनल अकाउंट्स
and do the posting of in the trading account and profit and loss account. हम अपने लेजर बुक में हर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. What we do is we transfer the balance from the ledger account to the trading account or profit and loss account. लेजर में आपके बुक्स में एक अकाउंट है सैलरीज पेड अकाउंट. ठीक है, सिर्फ हैंड्स रेस करना. सैलरीज पेड अकाउंट जो है लेजर में वो कौन सा बैलेंस दिखाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, बिकॉज इट इज पेड एक्सपेंस. पेड है यानी वो एक्सपेंस है. मान लीजिए आपके सैलरी अकाउंट में बैलेंस है 40,000 ईयर के एंड में. ठीक है, तो डेबिट बैलेंस रहेगा. आपने बोला सैलरी पेड अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो सैलरी पेड अकाउंट विल शो द डेबिट बैलेंस. ठीक है, तो ये जो सैलरी पेड अकाउंट है इसका ये डेबिट बैलेंस है. हम ये ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में और सैलरी पेड अकाउंट को क्लोज कर देते हैं. आप समझे? आप क्लोज करना, इसमें डेबिट बैलेंस है, सैलरी पेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस है. ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए हमको सैलरी पेड अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, उल्टा करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सिंपल रूल याद रखना, जो अकाउंट क्लोज करना है उसमें देखना है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस होगा तो वो अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है, क्लोज करते हुए. ओके, तो यहां पर डेबिट बैलेंस है. अब ये बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो आपकी जर्नल, ये अकाउंट को तो क्रेडिट करना है, तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. इसलिए आपकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू सैलरीज पेड अकाउंट. करेक्ट? 40,000. इसका ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या लेजर पोस्टिंग में यानी क्या इफेक्ट आएगा? P&L अकाउंट में कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में. और सैलरी पेड अकाउंट में कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में एज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000. तो जितना बैलेंस था सैलरी पेड अकाउंट में उतना बैलेंस हमने क्या किया? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो आपके लेजर बुक में सैलरी पेड अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस हो गया, क्लोज हो गया. करेक्ट? इज दैट ओके? तो इस तरह व्हेन वी पोस्ट द बैलेंसेस गिवन टू अस इन द ट्रायल बैलेंस, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस ऑफ ईच ऑफ सच अकाउंट इन द लेजर. ठीक है, जब हम उनके बैलेंस वहां ट्रांसफर कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? हर इंडिविजुअल अकाउंट को हम क्या करते जा रहे हैं? बैलेंस करके क्लोज करते जा रहे हैं. बैलेंस करके क्लोज करते जा रहे हैं. बराबर? तो जब व्हेन वी पोस्ट द एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी आर डूइंग नथिंग बट क्लोजिंग
balancing and closing each of the ledger account as I showed you just now in case of salaries paid account. Is that clear to everyone? तो एक्चुअली में हम जब ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हर अकाउंट का बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिपेंडिंग वेदर इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस और एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. करेक्ट? ये समझ में आया? तो इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम बैलेंसेस पोस्ट करेंगे, आप समझते जाना हम अपने लेजर में क्या कर रहे हैं, वो अकाउंट को क्लोज करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक. क्लियर टू एवरीवन? ओके. तो इस तरह हर एसेट में डेप्रिसिएशन अगर बोला है राइट ऑफ करने के लिए क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करते चले जाएंगे. ठीक है? इक्विपमेंट, डिलीवरी और मोटर वैन, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, लूज टूल्स, ये सब आप, और प्री पेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स. अगर आपको याद हो तो शायद मैंने 11th क्लास में मेरे जाने के पहले ये सब बताया था, वाई दे आर ट्रीटेड एज एसेट्स और लाइबिलिटीज. ठीक है ना? प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट्स इन होम. प्रीपेड, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. ठीक है ना? क्या एसेट है ना? ये तो दिया ना एसेट में. एसेट क्यों है मगर? क्योंकि फ्यूचर में सर्विस रिसीव करेंगे. यू हैव पेड सम एक्सपेंडिचर इन एडवांस. जिसको भी आपने एडवांस में पे कर दिया वो आपका डेटर है, वो आपका डेटर है. एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी और सर्विसेज आर रिसीवेबल इन फ्यूचर आर एन एसेट्स. देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? तो आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड. आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड. पे करना था करंट अकाउंटिंग ईयर में मगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिजल्ट्स इन क्रेडिटर्स. कि किसी भूत को तो नहीं देना है ना पैसा, या हवा में तो पैसा नहीं फेंकना है, किसी व्यक्ति को देना है. तो वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी ना किसी पर्सन को, क्रेडिटर को. ठीक है? और बिजनेस ने जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है, जिससे पैसा लेना है या उसके रिटर्न में कुछ और लेना है वो क्या है? डेटर है. आई होप यू गॉट इट. इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं? लायबिलिटीज हो जाती हैं. आई होप नाउ यू रिकलेक्ट. पवन सर ने अपने अलग तरीके से बताया होगा, शर्मा सर ने और अलग तरीके से बताया होगा, मैं मेरे देसी तरीके से ही बताऊंगा. ठीक है? अपने तरीके से ही बताऊंगा. चलिए, आई होप यू फॉलो. अब आते हैं ये डेटास. आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रॉब्लम करवाऊंगा, तो ये डेटास की पूरी एडजस्टमेंट का क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, वो लिखवा कर दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में ही. डेटर्स कौन? जिनसे पैसा लेना है. तो हम फाइनल अकाउंट करते हुए 2 गाने याद रखने पड़ते हैं. एक डेटर्स का गाना और डेटर्स से रिलेटेड बैड डेट्स का गाना. दोनों इफेक्ट लंबे और पूरे. जब तक आपको वो समझ में ना आ जाए आप पूरा गाना लिखेंगे. जब समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार एडजस्टमेंट करेंगे. मैं बोल देता हूं, डेटर्स दिए हैं. अगर क्वेश्चन में दिया है द गुड्स वेर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो जितने के अमाउंट के गुड्स सेल किए हैं वो अमाउंट जो है दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटर्स. तो जब हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं तो जर्नल एंट्री और ये तो नहीं एडजस्टमेंट कर रहे, जो रिकॉर्ड नहीं हुई बुक्स में, तो डायरेक्टली शॉर्टकट में वो एडजस्ट करते हैं. तो गाना बनता है ऐसा, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. दिस इज द सॉन्ग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब इनमें ये सब जो भी प्लस माइनस मैंने बोला, कोई चिंता वाली बात नहीं, बहुत आसान है. मैं इसकी आपको लेजरिंग भी बताऊंगा.
जर्नल एंट्रीज एंड लेजरिंग भी बताऊंगा आपको, क्यों हम प्लस कर रहे, क्यों हम माइनस कर रहे, अच्छा लग रहा तो प्लस कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा वो तो माइनस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक। शॉर्टकट हम कर रहे हैं, पूरी अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है, मगर जो हम प्लस माइनस करेंगे उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये कुछ इनिशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये पूरा लिखना है, चाहे क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट दिया है या नहीं दिया है। एक बार समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट दी है डेटास के साथ उतना ही प्लस माइनस करना, पूरा का पूरा गाना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट होता है प्रोविजन करने का P&L अकाउंट में, और वो शुरू होता है बैड डेट से। तो बैड डेट्स आपको पता है दो हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स दिए हो सकते हैं और एडजस्टमेंट में एडिशनल राइट ऑफ करने को भी दिए रह सकते। तो हम अपने सिंपल तरीके से बोलते हैं कि जो बैड डेट्स और आरडीडी का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है हम उसको ओल्ड बोल लेते हैं, और जो एडजस्टमेंट्स में दिया है उसको न्यू। पर मैं आपको बता दूं, बैड डेट्स और बैड डेट्स, आरडीडी का प्रोविजन इज आरडीडी का प्रोविजन, ओल्ड और बैड, ओल्ड और न्यू हम अपने समझने के लिए बोलते हैं उसको डिवाइड, ओल्ड है ये न्यू है, हम अपने समझने के लिए ओल्ड और न्यू बोल लेते हैं, पर ऐसा ओल्ड और न्यू ऐसा सच कुछ नहीं होता। तो P&L अकाउंट में भी उतना ही बड़ा एडजस्टमेंट है जैसा डेटास का एसेट साइड में है। टू ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ये तीनों के टोटल में से ओल्ड आरडीडी, और ये प्लस और माइनस क्यों करते, ये सब आपको मैं जर्नल एंट्रीज एंड लेजर से बताऊंगा कोई ना कोई क्वेश्चन में जहां पर सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये दो एडजस्टमेंट्स जो हैं आपको बैलेंस शीट में याद रखना पड़ेगा। लायबिलिटीज साइड आर द साइड्स वी रिकॉर्ड ऑल सच liabilities which are due from business to other parties, जो बिजनेस से दूसरे के लिए को ड्यू है वो सब क्या होते हैं, बिजनेस के लाइबिलिटीज है। तो बैंक से लोन लिया तो दैट बैंक लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म। किसी से क्रेडिट पर खरीदा, क्रेडिट परचेसेस किया है तो वो आपका क्या है, क्रेडिटर है, उसको पैसा देना, सो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल पेएबल, मैंने ख्याल से 11th क्लास में ये आपको बताया होगा जरूर मैंने। बिल्स रिसीवेबल किसके लिए होता है, बिल्स पेएबल किस, तो जैसे और कुछ नहीं याद तो कम से कम ये तो याद रह सकता, बिल्स रिसीवेबल है तो वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से पैसा मिलने वाला है, बिल्स पेएबल है तो वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से पैसा देना पड़ेगा। जो भी पेएबल है अमाउंट इन फ्यूचर इज द लायबिलिटी, इज अ लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा ये बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है जो बुक यानी साल भर में रिकॉर्ड नहीं हुए और लास्ट मोमेंट पे हमको उसको एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। इज दैट क्लियर? यानी उनकी अकाउंटिंग कंप्लीट, वो अकाउंटिंग में नहीं आए, उनकी एंट्रीज नहीं हुई, हम लास्ट मोमेंट में जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो अगर एडजस्टमेंट दिए तो वो एडजस्टमेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। इज दैट ओके? तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट वी शैल सी एंड आई विल बी रेफरिंग टू दीस एडजस्टमेंट्स व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इज दैट ओके? अब एक बात ध्यान रखें, चूंकि इनका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट्स जो भी दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, अगर आपको मान लो एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, ऐसा दिया है एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे। एडजस्टमेंट्स मीन्स which are given below the trial balance, इनका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, इनका अकाउंटिंग नहीं हुआ है। इसे जब फाइनल अकाउंट करते हैं तो हम उसका शॉर्टकट में डायरेक्ट इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। इज दैट ओके? शॉर्टकट है वो मैं बता दूं आपको फिर से, ठीक। तो ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको सैलरीज का और रेंट का,
ठीक है, ये क्या है, लायबिलिटी है, और इसको हम अकाउंटिंग नहीं हुई है इसलिए फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए इसके कितने इफेक्ट होंगे, कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे, 2। और जो ट्रायल बैलेंस में अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं उनका अकाउंटिंग हो चुका है, उनका अकाउंटिंग आपने क्या किया, व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द वेरियस लेजर अकाउंट्स, ऑफ द वेरियस लेजर अकाउंट्स, ठीक है ना। तो जो आपके लेजर में अकाउंट्स हैं उनके वो बैलेंसेस की लिस्ट है। आपने ये लिस्ट कहां से बनाई, लेजर बुक देखकर बनाई, बराबर। यानी जो लेजर बुक को रेफर किया मींस वो ट्रांजैक्शंस का सबका अकाउंटिंग हो चुका है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स हैं उनके जो अमाउंट हैं उनका एक ही इफेक्ट होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए, मगर जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है। अब हम वो कंप्लीट करेंगे फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए, इसलिए हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होगा, मिनिमम 2 इफेक्ट होगा। इज दैट ओके? तो पेज नंबर 54 निकालें और अपनी कॉपीज निकालें, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आप ध्यान देना, आपको 2 नंबरिंग करना है क्वेश्चंस के, 2 नंबरिंग करना है, 2। एक रनिंग नंबर देना है हर बार, जैसे ये 1 लिखा, हेलो, ये रनिंग नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और उसी के बाजू या आसपास कहीं पे भी लिखना है तो इट इज क्वेश्चन नंबर 1 पेज 54। हेलो, इज दैट ओके? 1 2 3 4 5 6 ऐसा रनिंग नंबर देना है हर क्वेश्चन को, so that we come to know on a particular day how many questions we have done, because in my plan there are 32 questions of the final account, that I have made a list of 32 questions to be done, ठीक है, not all in the class but also with the homework. Is that okay? सभी क्वेश्चंस क्लास में नहीं होंगे, पर जब मैं क्लास होगी अकाउंट्स की, एक क्वेश्चन अकाउंट्स का जरूर क्लास में होगा। Is that clear? I will be doing along with you. चलिए, पेज नंबर 54 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम शुरू करेंगे और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता भी जाऊंगा।
आप ध्यान दें, मुझे मालूम है आपको शर्मा सर बोलते हैं कि ये कॉलम्स और हेडिंग्स की कोई मतलब नहीं है, पर तुमने अगर बोर्ड एग्जाम में छान छान नहीं लिखला या प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दिया तो वहां आपके मार्क्स काट लेंगे वहां के टीचर्स. So you have to satisfy their ego a bit. Is that clear? So you have to write the heading as I have written on the board. 3 लाइन में, हेलो, 3 लाइन में अकाउंट का नाम हाईलाइट होना चाहिए एंड द टाइम पीरियड इन द 3rd लाइन. ओके. सिमिलरली सेकेंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर जगह इन द बुक्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड इस बुक में, सेकेंड इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो 3 चीजें एक साथ बनानी है, साइमल्टेनियसली हम बनाने वाले हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ. ओके, हो गए, कॉलम्स बन गए तीनों.
दो अकाउंट्स और बैलेंस शीट के। So first account trading account, second profit and loss account, and third would be the statement, that is balance sheet, indicating various liabilities and assets. मार्जिन को भी लिया करो। अब एक साइड का देखो कॉलम बड़ा हो गया, एक साइड का कॉलम थोड़ा सा बराबर है। चलिए शुरू करें। फिनिश ड्रॉइंग द कॉलम्स। ओके, नाउ यू आर अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. So you are given the various balances and then some adjustments. Stock on hand on 31st March 2019 was valued at 43,000. So the closing stock, बिकॉज कौन सी डेट को है, 31st मार्च को है, ठीक है, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यू नो, आई होप यू रिकलेक्ट एंड यू रिमेंबर द अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st of April and ends on 31st March. Number 2, uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen. uninsured को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि इंश्योर्ड गुड्स का ट्रीटमेंट और अनइंश्योर्ड गुड्स का ट्रीटमेंट अलग होगा। सो अनइंश्योर्ड गुड्स हैं ये। हम क्या करने वाले हैं, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स पढ़कर ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस से रिलेटेड है उसको टिक मार्क लगा देंगे ट्रायल बैलेंस में। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे और वो बैलेंस आता है जिसको टिक मार्क लगा है, तो हमको मालूम है उसके साथ कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी करना है, तो छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, क्रिएट RDD, that is reserve for doubtful debts at 2% on sundry debtors. sundry debtors जितने भी हैं उसका 2% क्या बनाना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो टिक मार्क sundry debtors। ओके, Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debts. तो Mr. Patil हमारा क्या बन गया, डेटर या क्रेडिटर? डेटर, क्योंकि क्या दिया है, he was insolvent and he could not pay the debts. 500 रुपए वर्थ रुपीज 500. So Mr. Patil is the debtor. Naturally, यानी ये पैसा डूब गया, तो किससे रिलेटेड है, डेटर्स से रिलेटेड है। तो एक और टिक मार्क डेटर्स को लगाना ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लगाना है, मेरे को पूछती क्यों नहीं समझ में आ रहा। अरे बेटा ये ट्रायल बैलेंस देखो ना, सन्ड्री डेटर्स डेबिट साइड में 3 है, उसको 2 टिक मार्क लगाओ, 2 राइट लगाओ छोटे छोटे। ऐसे तुम्हारा नुकसान है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछने में शर्म किस बात की है। देखो, अगर आप ऐसे समझेंगे कि पूछने में अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेगी, ठीक है, तो गलत बात है वो, आप अपना नुकसान कर रहे हैं उसमें। कुछ नहीं, अपना फायदा देखना है आपको, नहीं समझा तो पूछ लेने का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट रुपीज 800, अरे चुप। Outstanding expenses rent rupees 800 and salaries rupees 300. Outstanding means unpaid. तो rent unpaid during the year is 800 and salaries 300. Trial balance में देखो, डेबिट साइड में
कहीं दिया है क्या सैलरीज और रेंट दिया है तो उसको छोटा सा टिक मार्क लगाओ दोनों को, ठीक है। लास्ट में दिया है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹1,800। डेप्रिशिएट करना एसेट को मतलब उनकी वैल्यू को कम करना। किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर को। देखो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर कहां दिया है ट्रायल बैलेंस में, और उसको टिक मार्क लगाओ। हो गया लगाकर सब। अब हम पोस्टिंग शुरू करेंगे। now I have to speak and explain, so either you speak or you let me speak। आप बोलने या मुझे बोलने दें, दोनों में से, दोनों नहीं बोल सकते, ठीक है ना। so better shut your mouths। first we will post the debit balances and then we will post the credit balances। while posting we will also do the necessary adjustments if any with any balance given। सब लोग बुक में देखेंगे पहले क्या दिया है। पहले डेबिट बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, उसको टिक मार्क लगाएं क्या, नहीं। इसका मतलब उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। उसका कितना इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा। Now plant and machinery is the property of the business, therefore this balance will be written on the asset side of the balance sheet। plant and machinery $2,80,000। then next balance is of factory building। next balance is of factory building, again it is an asset। और कभी कोई ऐसा बैलेंस आ जाए, ऐसा नाम आ जाए अकाउंट का जो आपने ना सुना हो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने को बोला हो एडजस्टमेंट में, तो कॉमन सेंस की बात है, वो क्या है, एसेट है। इज दैट क्लियर। बहुत रेयरली होगा ऐसा, जब आप एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे तब थोड़ा बहुत वैसी कंफ्यूजन आ सकती है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग आप ध्यान दें और स्क्रीन पर देखें मैं कैसे लिख रहा हूं। factory building given is book value of the building is 75,000 and उसके साथ एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500। डेप्रिशिएट करना 2,500 से मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू 2,500 रुपए से कम करना है। इज दैट ओके। सो माइनस डेप्रिसिएशन $2,500 and in the outer column 72,500। now this depreciation of 2,500 is a reduction in the value of business asset, therefore the amount written off as depreciation is the business loss and therefore we will transfer this depreciation amount to the profit and loss account on the debit side, debit all expenses। मगर ये depreciation cannot be the first entry in the profit and loss account। पहली एंट्री नहीं हो सकती वो, ठीक है। पहली एंट्री किससे रिलेटेड होना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से। तो इसलिए कुछ लाइन छोड़कर आप लिखें टू डेप्रिसिएशन। मैं दो तरीके बता दूंगा डेप्रिसिएशन लिखने के, और फिर आप उसमें से जो आपको जैसा लिखना हो वैसा लिखना। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी वैल्यू कम करी, 2,500।
500। तो एडजस्टमेंट में जो अमाउंट बनते हैं वो अमाउंट्स के कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनका अकाउंटिंग नहीं हुआ। ओके, थर्ड इज गिवन एज डेटर्स 28,700। सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे और कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो सन्ड्री डेटर्स मैं रेड से लिख रहा हूं हाईलाइट करने के लिए, आपको अलाउड नहीं है एग्जाम में। इज दैट क्लियर? सो डोंट टेक, सर लिख रहे थे अच्छा दिखता बोल के तुम भी लिखना शुरू कर दो रेड ग्रीन इंक से। नहीं, यू आर अलाउड ओनली 1 colored ink. Is that okay? Sundry debtors, book value of sundry debtors given is 28,700. ठीक है, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है इसमें जो भी प्लस माइनस करेंगे डेटर्स में, दे आर ऑल एडजस्टमेंट, देयरफॉर इट विल बी गिवन अंडर द ट्रायल बैलेंस। दिया है कि हमको कोई एडजस्टमेंट ऐसा, गुड्स वेर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसी कोई एडजस्टमेंट दी है क्या? नहीं दी है, तो मैं उसके जगह क्रॉस लगा दूंगा। प्लस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ऐसा कोई एडजस्टमेंट दिया है दैट द बिल आउट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बिल ऑफ रुपीज सो मच वाज डिसऑनर्ड? नहीं, डिसऑनर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप यू रिमेंबर, मैं फिर से बता दूं, मान लीजिए कि मैंने ये राजदीप से क्रेडिट पर सामान खरीदा 25,000 का, इन्होंने मुझे उधार में बेचा। ठीक है, इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इसको पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, इसलिए वो मेरे को एक रिटन ऑर्डर देता है। ठीक है, that after 2 months pay me amount of 20,000 for the value received, ऐसा एक टिपिकल लैंग्वेज में ऑर्डर लिख कर देता है साइन करके। मैं एक्सेप्ट वर्ड लिखकर उसके ऊपर साइन कर लेता हूं। दिस रिटन ऑर्डर गिवन बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी is called as bill of exchange. It is called as bill of exchange. There are 3 parties to a bill of exchange: drawer, drawee and payee. Drawer कौन होता है? जो ऑर्डर देता है। ड्रॉई कौन होता है? जो एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और पेई कौन होता है? जिसको ड्यू डेट पर पैसा देना है। इज दैट क्लियर? अब आपको टोटल बिल रिसीवेबल आपके पास कितने के हैं? 28,700 के। ठीक है ना, 28,700 के। अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 28,700। अगर कोई बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने जो मुझ पर बिल ड्रॉ किया था, मैंने इनको ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए, तो जब ड्यू डेट पर पेमेंट ना करे पेई, तो हम बोलते हैं बिल का क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब मेरे को बताओ, मेरे पैसे नहीं देने की वजह से राजदीप के डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? मैं एक 25,000 का डेटर बढ़ जाऊंगा इसके बुक्स में। इज दैट क्लियर? तो whenever bill is dishonored, the value of debtors increase, and therefore we add the bills receivable dishonored to the debtors. हम शॉर्टकट मार रहे, सीधा प्लस माइनस कर रहे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका अकाउंटिंग नहीं हुआ और हम क्या बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। बराबर? इज दैट क्लियर? एडजस्टमेंट दिया है क्या? बिल वॉज ऑफ रुपीज सो एंड सो वॉज डिसऑनर्ड, नॉट गिवन। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत कम एडजस्टमेंट दी है डेटर्स के साथ। ठीक है, अब ये तीनों का टोटल आता है 28,700। ठीक है, सो द टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स कितनी रह गई? 28,700। ठीक है, चेंज हो सकती है। तो व्हेन यू, जब ये स्टेप, इतना स्टेप आप कर लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स मिल जाएंगे। उसमें से माइनस
मैं वर्ड यूज कर रहा हूं न्यू बैड डेट्स। मैंने आपसे कहा न्यू और ओल्ड कुछ नहीं होता, हम अपने समझने के लिए उसको न्यू या ओल्ड बैड डेट्स बोल देते हैं। अब बैड डेट्स क्वेश्चन में दो जगह दिए होंगे आपको, ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स का बैलेंस होगा और एडजस्टमेंट में भी कुछ अमाउंट राइट ऑफ करने को दिया होगा, 500 इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो ट्रायल बैलेंस में भी है बैड डेट्स और एडजस्टमेंट में भी है बैड डेट्स। जो ट्रायल बैलेंस में है वो ओल्ड है, जो एडजस्टमेंट में राइट ऑफ करने को दिया है वो न्यू है। हमको न्यू कंसिडर करना है क्योंकि उसका एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस में है उसका तो अकाउंटिंग हो गया, इसलिए तो आपके ट्रायल बैलेंस में उसका वो अकाउंट का बैलेंस आ गया, बैड डेट्स अकाउंट का बैलेंस आ गया। मगर ये जो राइट ऑफ करने को बोला एडजस्टमेंट में, उसका अकाउंटिंग होना बाकी है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमेशा क्या लेंगे, न्यू बैड डेट्स, यानी वो बैड डेट्स विच आर गिवन इन द एडजस्टमेंट टू बी रिटन ऑफ, टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, अब यहां पर दिया है मिस्टर पाटिल, our customer became insolvent and could not pay his debts of rupees 500। तो आपका डेटर 500 रुपए नहीं दे पाया तो बैड डेट्स हो गए। जो अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स की वजह से आपके डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी 28,200। 28,002। ये अमाउंट के ऊपर जितना परसेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने को बोला है वो इतना करने के बाद, यानी दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स ऑन विच यू हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इज दैट क्लियर? तो डाउटफुल डेट्स प्रोविजन करने के लिए क्या दिया है, क्रिएट RDD at 2% on sundry debtors। तो ये 2% जो निकालना है, कौन से अमाउंट का निकालना है, 28,200 का। इज दैट क्लियर? इससे मैं बोला गाना आना चाहिए और यही सीक्वेंस होना चाहिए। हेलो, ठीक है ना, यही सीक्वेंस होना चाहिए। क्या सीक्वेंस है, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड माइनस न्यू बैड डेट्स। इतना करने के बाद आपकी करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी डेटर्स की और उसके ऊपर माइनस न्यू आरडीडी। फिर से न्यू आरडीडी कौन सा, जो आपको एडजस्टमेंट में प्रोवाइड करने को बोला है। इज दैट ओके? 564। इतना, आज ये प्रॉब्लम इतना ही होगा, टाइम हो गया। ये लिख लो, इतना लिखो फिर जाना। So unrecorded sales and bills receivable dishonored increases the value of debtors, therefore they are added directly। जब हम डायरेक्टली करते हैं, इसकी अकाउंटिंग में भी मैं बता दूंगा कोई क्वेश्चन में जहां पर सारा प्लस माइनस आ जाए या मैक्सिमम आ जाए, जिस क्वेश्चन में